ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੋਕਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਵੈਲਕਮ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਜਿੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ, MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਘਟਨਾ ਜੋ ਵਾਪਰੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵਾਹਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 44-45 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਫਿਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ ਰਿਕੈਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਛੱਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਲ ਭਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਬਾਰੇ? देखिए वीर जी, एक तो जब पहले अपनी बातचीत हुई तब भी हमने बताया था कि अगला जो आंदोलन होगा वो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये जो आंदोलन हुआ था ये भी इतनी जल्दी नहीं हो गया था कि 1-2 दिन में तैयारी होगी, हो कई महीने लग गए थे तैयारी में। अभी भी उसी की आंदोलन की ही तैयारी कर रहे हैं। जितने भी किसान आगू हैं वो अपनी मीटिंगें कर रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि जो मेन मांग है हमारे किसानों की, जो किसान मुद्दों की मेन मांगे हैं, वो मांगे ऐसी की ऐसी हैं। जो सरकार ने वायदे किए थे, जो आंदोलन मुलतवी किया गया था, जो वायदे किए थे वो वायदे सरकार ने कोई पूरे नहीं किए। सरकार ने बोला था, जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ था, सबसे बड़ा कांड हुआ था, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी कि उसको दोषियों को सजा मिलेगी। सजा तो दूर की बात है, उल्टा किसानों को जेल में डाल दिया और जो टेन्नी मिश्रा है उसके लड़के को बाहर बेल पे बाहर कर दिया, वो सिर्फ पंडितों की वोटों के लिए। इसका बीच में विरोध भी किया था किसानों ने, बोला भी था, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। MSP के बारे में बात की, 2 बार बात कर चुके सरकार से। सरकार बोलती नहीं इलेक्शन के बाद कर लेंगे, जबकि 1 महीने का टाइम दिया गया था कि MSP पे जो कमेटी बना दी जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर। फिर भी किसानों ने बोला था आप 2 महीने के अंदर भी बना देना। वो 2 महीने भी पूरे हो गए। अभी सरकार इस बात को आगे से आगे, एक वो बोलते ना, ठंडे बस्ते में डालना चाहती है कि लोग भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। लोग नहीं भूले हैं। वो 13 महीने का संघर्ष, 720 साथियों की शहादत, एक भी आदमी नहीं भूला है और ना ही भूलने दिया जाएगा। हम भी बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो मांग थी MSP की और किसानों की कर्ज माफी की, वो भी वही की वही है। सरकार ने वायदा किया, जो 2 वायदे किए थे सरकार ने, वो 2 तो पूरे किए नहीं। अगले वायदों के लिए बताया गया था, टाइम दिया गया था सरकार को कि आपको मार्च तक का समय दे रहे हैं हम, हमारे को जवाब चाहिए। फरवरी जा चुका है। जो हमारे साथी थे, कुछ जत्थेबंदी अपनी पंजाब की थी, अपने हरियाणा से थे, उन्होंने बोले हम चुनाव लड़ लेते हैं, आंदोलन मुलतवी हो गया है अभी। और ये भी बोला गया था हम चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो जनता होती है ना, जनता ने जो SKM बनाया था, वो एक तरह से जो थर्ड फ्रंट बोलते हैं, तीसरा मोर्चा,
कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टियां एक तरफ, एक तीसरा मोर्चा बना दिया था। कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस की किसी की भी सरकार हो, अगर गलत करेगी किसानों के साथ मजदूरों के साथ, तो एक तीसरा मोर्चा बना दिया है, ये उसका जवाब देगा। लेकिन उसमें लोगों का जो मन टूट गया था कि भाई ये किसान आगू आंदोलन लड़ वो चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बीजेपी सरकार भी बोलती थी ये चुनाव के लिए ऐसा कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ा, कोई विरोध नहीं है, लड़ लिया चुनाव, वो भी लड़के अब फ्री हो चुके हैं। अब वो भी अपनी अपनी यूनियनों को तैयार करेंगे और वापिस आंदोलन होगा। इस बारे में सभी से बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब की जो पहले हमारे से गलतियां हुई थी, पंजाब में लोग जागरूक थे, पंजाब पूरा उठ के एक साथ आ गया था। हरियाणा में इतने जागरूक नहीं हो पाए थे क्योंकि बंदी लगा रखी थी, लॉकडाउन लगा रखा था। लॉकडाउन में इतनी जनसभाएं वो नहीं कर पाए थे। अब की बार पहले हरियाणा में भी जागरूकता चल रही है, यूपी में भी जगह जगह पे पंचायतें कर रहे हैं, छोटी छोटी पंचायतें करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भाई आंदोलन करना पड़ेगा। जो किसानों की मांग है, एमएसपी गारंटी की है, किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की है, या स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की C2+50 के आधार पर फसलों की खरीद की है, वो मांगे वहीं की वहीं है। आप एक चीज देखो वीर जी, 15-20 हजार रुपया कर्ज लेता है किसान, 15-20 हजार ज्यादा नहीं देखा जाए तो। लोग 20-20, 22-22 हजार करोड़ रुपए लेके भाग जाते हैं। 15-20 हजार का जो किसान कर्ज लेता है उसको आत्महत्या करनी पड़ती है, वो तो देश छोड़ के नहीं भागता। सही में देशभक्त कौन है? बड़े बड़े उद्योगपति हैं या किसान है? ये लोगों के सामने अभी ताजा उदाहरण है। जो 23 हजार करोड़ रुपए लेके, वो गुजरात का एक व्यापारी भाग गया है, वो 23 हजार करोड़ लेके भाग सकता है। किसान के अगर 23 रुपए भी होंगे ना, उनको ब्याज का ब्याज लगा के उनकी जमीन की कुर्की कर दी जाती है और इतना मजबूर किया जाता है कि उसको आखिर में आत्महत्या करनी पड़ती है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा कर्ज माफी वाला, और ये कर्ज माफी का मुद्दा अब की बार सबसे बड़ा रहेगा। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੀਪਕ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ MSP ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਹੈ? ऐसा वीर जी, सरकार से ये कोई बातचीत आज से नहीं चल रही है। एमएसपी के लिए पहले भी एक बार आंदोलन हुआ है और सरकार ने तब भी आश्वासन ही दिया था। बार बार आश्वासन देना, इसका जो आपने जोगिंदर सिंह गुराज जी ने बोला था एक बार कि हम चुनाव लड़के संसद में जाके इसका फैसला नहीं कर सकते, इसका फैसला सड़कें ही करेंगी। अब की बार जो आंदोलन होगा, ये चाहे सरकार अब बीजेपी की रहे ना रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाए, अब की बार जो आंदोलन होगा एमएसपी की क्लियर गारंटी लेकर ही उठेगा वो आंदोलन। अब की बार आंदोलन बीच में नहीं उठेगा। इसलिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत जरूरी है। पिछली बार 13 महीने थोड़ा समय नहीं होता वीर जी, सर्दी गर्मी बारिश धूप सब कुछ ऊपर से गुजर गया था। लोगों की इतनी, क्या एक नॉर्मल आदमी जो होता है उसकी इतनी ट्रेनिंग नहीं होती। लगा लो आर्मी के जो बंदे होते हैं वो ट्रेनिंग शुदा होते हैं। आर्मी के बंदे भी तंग हो गए थे क्योंकि हालात ही ऐसी थी। कहीं कहीं पे तो ऐसी हालत थी आप 1 मिनट नहीं रुक सकते, और वहां पर कई कई महीने रुकना पड़ा था। वहां पर भी रुके हैं। अब ये लोग पक चुके हैं जो आंदोलन में शामिल थे, उनकी तो ट्रेनिंग होगी 13 महीने की। आर्मी की ट्रेनिंग भी 9 महीने की होती है, तो 13 महीने की ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब की बार आंदोलन होगा, सरकार भी भूल जाएगी, चाहे सरकार कोई भी हो, भूल जाना ना कोई उल्टा हटेगा। अब की बार जो मांगे होंगी उन मांगों की लिस्ट पहले ही बनेगी, और टेबल पे जाने से पहले अगर मांगे मान ली जाती है तो ही टेबल पे जाएंगे किसान आगू बात करने के लिए, नहीं तो कोई बातचीत नहीं होगी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਇਹ पहले तैयारी यही है, जैसे लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था, एक पक्का मोर्चा लखीमपुर खीरी में लगेगा। उसके बाद पंजाब में कुछ मांगे बाकी हैं, वो पंजाब में हुई। हरियाणा में भी 2-3 जगह पे जो फैसले हुए थे वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, उन मांगों के लिए हरियाणा में भी अभी होगा। पहले जिस प्रकार पहले किया गया था ना, एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, पहले अपने अपने सूबों में बैठेंगे, जब वहां पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, फिर एक साथ बातचीत करके एक जगह मुलतवी की जाएगी, चाहे वो दिल्ली हो या कहीं पर भी हो। फिर उस एक जगह पे हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश राजस्थान सभी मिलके बैठेंगे। और अब की बार सरकार को पहले ही बता दिया, जो गलती पहले की थी सरकार ने, सड़कों पे खड्डे खोदना, किले लगा देना, वो गलती ना करे तो ही अच्छा है। और अब की बार मौका भी नहीं दिया जाएगा सरकार को। पिछली बार तो बताया था कि हम 26 नवंबर को दिल्ली जाएंगे, एक तारीख मुकर्रर की गई थी, इसलिए सरकार ने रास्ते में गड्ढे खोदे थे, लोगों को दिक्कतें भी बहुत हुई थी।
लेकिन लोग अब उसकी ट्रेनिंग ले चुके हैं। अब की बार कोई तारीख नहीं रखी जाएगी, दिल्ली इस डेट को जाएंगे, दिल्ली पहुंच के तारीख बताई जाएगी, हम दिल्ली आ चुके हैं। अब दिल्ली सरकार हमारे को बता दे, जो केंद्र सरकार है उसका क्या इरादा है, या फिर संसद पे ही कब्जा करना पड़ेगा, क्योंकि संसद में पूरे चोर लुटेरे बैठे हुए हैं जो आए दिन नए नए कानून थोपते जा रहे हैं। अभी हरियाणा में एक ताजा कानून पास हुआ वीर जी, आपको पता हो, कल ही पास हुआ है। जो 10 से 15 साल पुराने वाहन है डीजल पेट्रोल के, उन वाहनों को जब्त किया जाएगा। 15,000 रिक्शा, रिक्शा कौन चलाता है वीर जी? जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए रिक्शा चलाता है। सबसे पहले 15,000 रिक्शा गुड़गांव से कलेक्ट की जाएंगी, ये मार्च में होगा। रिक्शा वालों को मार रहे, क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाएंगी जो 20-20 साल पुरानी गाड़ी है, नेताओं के पास मिलेंगी। अगर करना है तो सबसे पहले उनकी जब्त करो ना गाड़ियां। सबसे पहले मजदूर को और किसान को ही मारते हैं, और ये चीजें लोगों को पूरी तरीके से समझ में आ चुकी है। लोग भी इंतजार में थे। देखो, जो चुनाव होता है वो 5 साल में एक बार आता है, और लोगों को 5 साल में एक बार मौका मिलता है अपना मत का प्रयोग करने का। इसीलिए ये शांति दी गई थी, और चुनाव भी फिर उत्तर प्रदेश और पंजाब में एक साथ आ गया था। हरियाणा अकेला बैठ नहीं सकता था, इसलिए इस आंदोलन को मुलतवी किया गया था कि एक बार चुनाव देख लेते हैं, उसके बाद माहौल देखेंगे। या तो सरकार हमारी जो मांगे उनको मान लेगी, फिर आगे की बात रखी जाएगी। जो मांगे सरकार ने टेबल पे जो माननी थी वो पूरी की नहीं है। अभी अगली मांगों के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्या जवाब देगी क्या जवाब नहीं देगी। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ। ऐसा वीर जी, अंदर भी बैठेंगे, अंदर भी किसान ही बैठेंगे अब की बार, ये भी कन्फर्म है। और ये भी किसानों ने अपना एक उद्देश्य बना लिया है। ये जो चुनाव हुए थे, इस चुनाव में आप देख रहे हो, जो पंजाब में चुनाव हुए हैं, वहां पर भी अभी जो चुन के आएंगे वो अभी आप भी देखोगे, सरकार जो बोलते हैं कि वो बनाएगा वो बनाएगा, कौन बनाएगा वो तो समय बताएगा। उत्तर प्रदेश में देखना आप, या और जिन 3 स्टेटों में चुनाव वहां देखना। 2023 में 3 स्टेटों में फिर चुनाव है, और 2024 में चुनाव है पूरे देश में। अब की बार तैयारी ऐसे की जाएगी, संसद के बाहर भी किसान होंगे और संसद के अंदर भी किसान होंगे। उसी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए अब की बार जो आंदोलन होगा, जो किसान आगू होंगे उनके ऊपर पहली शर्त होगी, कोई वो चुनाव नहीं लड़ेगा, ना ही उनका कोई सगा संबंधी चुनाव लड़ेगा। अब की बार पहले ये शर्त लगाई जाएगी, क्योंकि क्या है, इससे मनोबल जो होता है ना, आम आदमी जो आंदोलन में शामिल होता है उसका मनोबल टूट जाता है कि ये लोग तो हमारे कंधे का सहारा लेके संसद में जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब की बार जो लड़ेगा ईमानदारी से लड़ेगा, जिसको नहीं लड़ना है वो पहले ही घर बैठ जाएगा। आंदोलन हो सकता लंबा चले, हो सकता नई जनरेशन को मौका मिल जाए अगुवाई करने का, ये भी हो सकता है, क्योंकि कल टिकैत साहब ने भी बोला है कि हो सकता हम रहे ना रहे लेकिन आंदोलन चलेगा। आंदोलन अब चलेगा, और नई जनरेशन को भी तैयार होना पड़ेगा, मेंटली तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, कि अब की बार जो आंदोलन होगा, ट्रेनिंग ले चुके 13 महीने की, अब आगे जो चलेगा उसमें सबको आगे से आगे बढ़ के अपनी हिस्सेदारी निभानी पड़ेगी। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੇਕਰ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਲਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। देखिए वीर जी, उदाहरण देते हैं, चौधरी छोटू राम थे, जो उन्होंने भी ऐसे ही मांगे उठा के वो संसद तक पहुंचे थे। वो एक समय दूसरा था। आज का समय ऐसा समय, अगर आप अगुवाई कर रहे हो किसानों की, आपको अगर चुनाव लड़ना है तो उससे पहले आपको सभी किसानों से एक बार तालमेल कर लेना चाहिए। ये जो इन्होंने किया था, ये अचानक से ऐलान किया था, कोई तालमेल नहीं किया था, अपनी यूनियनों से भी तालमेल नहीं किया था, लोगों से तो दूसरी बात है। तालमेल बहुत जरूरी है। आप पहले पूछ लो, अगर हो सके, अगर आप कहो तो हम चुनाव लड़े। अगर जनता खुश होती तो इनको वोट मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये चीज तो बहुत एक नॉर्मल कॉमन चीज है। ये आपको तालमेल बनाना बहुत ही जरूरी है। बगैर तालमेल के अगर आप अगुवाई भी कर रहे हो, फिर राजनीति में भी जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होता वीर जी। आजकल पढ़ी लिखी जनरेशन है, ये बात को उल्टा पहले लेती है, सुलटा बाद में करती है। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਰਥਿਕ ਆਉਣੇ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल, ये बिल्कुल जो अपना चौधरी छोटू राम थे, उन्होंने क्या किया था, वो किस समय पे बने थे, एक वो समय भी नोट करना वीर जी। उस समय पे संयुक्त पंजाब एक था। अब की बार एक तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश पता नहीं कितने सालों के बाद एक हुए थे। जब तक पूरे दिल मिल पाते, एक दूसरे को समझ पाते, उससे पहले
आंदोलन मुलतवी कर दिया और इन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वो तालमेल फिर खराब हो गया था। लेकिन जो आम लोगों का है उनका तालमेल खराब नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा ही कुछ करना है तो आप एक मांग और शामिल कर दो कि भाई संयुक्त पंजाब एक कर दो हमारा, हम अपने संयुक्त पंजाब का अलग से अपना कर लेंगे, आंदोलन करें कुछ भी करें वो एक अलग चीज हो जाएगी। उस समय पे जो अपना पश्चिमी यूपी है, हरियाणा है और पंजाब है और हिमाचल है, ये एक होता था। कोई भी आंदोलन होता था, कोई भी बड़ा आंदोलन होता था, सबको पता है बड़ा आंदोलन जब भी हुआ है, आप आजादी से पहले ले लो, आजादी के बाद ले लो, शुरुआत पंजाब से हुई है। पंजाब इसलिए, हरियाणा बार बार हमने एक चीज बोली थी कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है। वो बड़े भाई का दर्जा इसलिए दिया हुआ कि हरियाणा पंजाब से अलग हुआ है, पंजाब हरियाणा से अलग नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। 1966 के बाद 2021 में आके हम मिले हैं, कितने सालों के बाद हम मिले हैं। जब तक हम एक दूसरे को समझ पाते, ये बीच में चुनाव आ गए थे, अभी बीच में कोई चुनाव नहीं है, हमारे पास भी 2 साल का समय है, आराम से एक दूसरे से संपर्क करेंगे। अभी हम भी पंजाब में आएंगे, पंजाब वाले हरियाणा में आएंगे। एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि जो अगू हैं वो हरियाणा वाले उस पंजाब में जाएंगे, पंजाब वाले हरियाणा में, यूपी वाले हरियाणा में, हरियाणा वाले यूपी में, ऐसे करके लोगों के साथ आपसी तालमेल किया जाएगा। जब आपसी समझ पूरी हो जाएगी तब एक बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा। देखो ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਕਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੀਪ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। बिल्कुल, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम दूसरी तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एकता में बहुत बल होता है। वो एकता में बल इसलिए होता है, बोलते हैं जो बंदी मुट्ठी होती है ना, बंदी मुट्ठी वो लाख की होती है, खुली है, खुली में तो सबको पता है कुछ भी नहीं है। अब की बार इतना स्ट्रॉन्ग बंद करना है इस मुट्ठी को कि कोई भी सरकार आए, कितना ही बड़ा तानाशाह आए, इस मुट्ठी को नहीं खोल पाएगा। और मुट्ठी जब तक हमारी बंद रहेगी तब तक हमारी ताकत एक रहेगी। अब की बार मुट्ठी को नहीं खोलने दिया जाएगा वीर जी। ਜੀ ਦੀਪਕ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद वीर जी। ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, उत्तर प्रदेश, पंजाब इकट्ठे होकर लड़े, तमाम सूबे इकट्ठे होकर लड़े तो बीजेपी हुकूमत नूं तीनों ही खेती कानून वापस लैने पे। हुण समझण वाली ते देखण वाली गल यह होऊगी जिस ते असीं प्रोग्राम कीता है कि किसान आगूआं वल्लों अगले फैसले की लए जाणगे। जो लगातार किसान आगू यह गल कहंदे सी कि असीं अंदोलन मुड़ शुरू करांगे, पंजाब दे विच चोणां समाप्त हो जाण, उस तो बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई विढ़ी जाऊगी। इसे पूरे मामले दे विच साडे कोल जो इन्फॉर्मेशन होगी लगातार असीं तुहाडे नाल सांझी करते रहांगे। तुसीं बने रहो तुहाडे अपने चैनल लोक राणा चैनल पंजाबी ते। धन्नवाद।